सुनाई पड़ रहा है? Today we'll start the Fourier transformation. So let us start Fourier transformation. So we discuss the concept the transformation. Concept the transformation already have discussed in Laplace transformation. See as a similar way, same is we repeat the concept of transformation. An improper integral of the form minus infinite infinite kst ft dt is called the integral transform of ft. If it is convergent, sometimes it is denoted by fs. That is transformations of ft. That is t of t. Thus, fs equal to transformations of ft equal to minus infinite infinite kst ft dt. The function kst appearing in the integrand is called the kernel of the transformation. Here s is a parameter and is independent of t. S may be real or complex number. Already have discussed in Laplace transformation. And similar way, kernel of st will be changed. Then we have the Laplace transformation. Okay. And a similar way, what is Hankel transformation of ft? Ft then kernel of st will be changed. Kernel of st will be changed. Then transformations already changed. Then kernel of st will have t of jn st dt 0 to infinite. That will be Hankel transformation. Mellin transformation is denoted by ft is fs equal to 0 to infinite ft t to the power s minus 1 dt. And a similar way, Fourier transformations of ft is minus infinite infinite ft equal to exponential of minus ist dt. ये Fourier transformation का definition है, ठीक है ना? Infinite Fourier transformations of fx, what will have the infinite Fourier transformations of fx minus infinite to infinite is denoted by fs, or capital F denoted by Fourier transformations of fx and is defined as fs equal to fx equal to minus infinite infinite fx exponential of minus isx dx. The inverse formula for Fourier transformation is given by fx क्या होगा, f inverse fs ds. इसका फॉर्मूला होगा 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट fs एक्सपोनेंशियल ऑफ i sx dx. ये जनरल फॉर्मूला है इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस का, ठीक है? इनफाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है? द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fx 0 to infinite is denoted by fss. स्मॉल s जो सफिक्स s denoted as साइन, that is fss. In a similar way, we can write it defined as 0 to infinite fx sine sx dx. Inverse transformations already have fx equal to, will have the infinite Fourier cosine transformations of fx क्या होगा? The Fourier cosine transformations of fx 0 to infinite. And similar way, साइन में क्या होता है? साइन एस एक्स हो जाता है, और कोसाइन में क्या होता है? कॉस एस एक्स हो जाता है. लिमिट विल हैव 0 to infinite. And similar way, साइन और कॉस.
तो रिलेशन बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों में रिलेशन क्या होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी हैव टॉट, ओके। और दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है? तो रिलेशनशिप निकालने के लिए वो डिफाइन फंक्शंस ऑफ टी, फंक्शंस ऑफ टी का हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स टी हाई टी व्हेन टी इज ग्रेटर देन 0 एंड 0 दैट इज टी लेस देन 0, ठीक है। अब दोनों में रिलेशन निकालेंगे। पहले फंक्शन का हम लोग डिफाइन हम लोग इस तरह से करते हैं, दोनों के रिलेशन निकालने के लिए फंक्शन ये है विल है। अब उसके बाद इस फंक्शंस के थ्रू हम लोग दोनों का रिलेशन क्या निकलेगा, देखो। यदि फोरियर ट्रांसफॉर्म से एफ टी इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस आई वाई टी एफ टी डी टी, देखो that limit will have minus infinite to 0 and 0 to infinite, you can write। नेक्स्ट स्टेप क्या है बोलो? माइनस इनफाइनाइट तो 0 में फंक्शंस ऑफ टी विल हैव 0, देखो। सो फर्स्ट इंटीग्रैंड विल बी फिनिश, सेकंड इंटीग्रैंड 0 to infinite will have, and functions of t will have क्या है? एक्सपोनेंशियल माइनस आई एक्स टी फाई टी डी टी, देखो लिख दिए। दिस एक्सपोनेंशियल we combine it, we have and phi t dt, ठीक है। which is the required relations between ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर है कि नहीं बोलो? एनीवन स्टूडेंट? लाइन नहीं समझ आया सर। कौन सा नहीं समझे बोलो? तो थर्ड लाइन। थर्ड लाइन ये यस सर, ये सॉल्यूशन का लाइन। इसको बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ, ये लाइन क्लियर है? यस सर। ओके, तो फंक्शंस ऑफ टी का वैल्यू में मेरा दिया हुआ है, बोलो दिया हुआ है, देखो 0 दिया हुआ है। 0 किस में दिया हुआ है? जो टी का अपर लिमिट क्या है? 0। 0 और फंक्शंस ऑफ टी का वैल्यू दिया हुआ, ये दिया हुआ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स टी फाई टी, इसमें टी का लोअर लिमिट क्या है? 0। देखो टी का अब 0 जो अपर लिमिट, 0 का अपर लिमिट मतलब क्या है? यहाँ पर है माइनस इनफाइनाइट टू 0। यस सर। इसीलिए फर्स्ट इंटीग्रैंड विल वेनिश, दैट विल हैव 0, ये 0 दिया हुआ है तुम्हारा फंक्शंस ऑफ टी। सेकंड इंटीग्रैंड हैव, इसको हम लोग यहाँ लिख दिया, देखो ठीक है। सर टू द पावर माइनस xt कैसे आया? ये हम लोग फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ, देखो दोनों को लैप्लास ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस को निकालने के लिए फंक्शंस ऑफ टी विल डिफाइन ऑलरेडी, ये फंक्शंस में डिफाइन किया हुआ है। इसी ये हम लोग लैप्लास ऑफ रिलेशन दिखा सकते हैं, बाकी रिलेशन हैं, ये फिक्स्ड फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। समझ रहे हो ना? यस सर। फंक्शन में दिया हुआ है, इस फंक्शंस के जरिए हम लोग लैप्लास ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन हम लोग दिखा सकते हैं। तो क्लियर है फंक्शंस रिलेशन? देखो ठीक है, बोलो। ठीक है सर। ओके, देखो फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया हुआ है, इसको हम लोग निकालना है, ठीक है। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स मतलब एक्स दिया हुआ है, एक्स का मीनिंग क्या दिया बोलो तो? मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो एफ एक्स क्या होगा बोलो? एफ एक्स को हम ऑलरेडी हम इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखो ये मॉड एक्स
इज लेस देन इक्वल टू ए, इसका मीनिंग है माइनस ए टू ए, ठीक है, लेस देन इक्वल टू ए दिया हुआ, इसीलिए हम लोग स्पेशल लिख सकते हैं, ठीक है, और जीरो में दिया हुआ ए टू ए दिया हुआ है, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स का जो डेफिनेशन है वो लिखे हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। देखो बोलो, ठीक है। हम्म, ठीक है, बोलो। बोलो, एनीवन स्टूडेंट? हम्म, तो एक्सपोनेंस फर्स्ट इंटीग्रेंड माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इसको हम लोग लिखे हैं इस तरह से, क्लियर है? बोलो। हम्म, ये फर्स्ट इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए टू ए, और थर्ड इंटीग्रैंड भी होगा प्लस ए टू जीरो। तो प्लस ए टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स क्या हो, जीरो हो जाएगा, थर्ड इंटीग्रैंड तो ऑलरेडी फिनिश हो जाएगा जीरो, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रैंड में भी तुम्हारा इंटीग्रेशन फिनिश होगा, क्योंकि अगर पुट इस इंटीग्रैंड को सॉल्व किया जाए, माइनस एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू सॉल्व करके पुट कर दिया जाए, सॉल्व कर दिया जाए, तो इसका वैल्यू तुम्हारा जीरो हो जाएगा। तो सेकंड इंटीग्रैंड ऑलरेडी है, ये बचेगा तुम्हारा, ठीक है। सेकंड इंटीग्रैंड वी हैव, देखो only for this integrand will have first integrand minus infinite to a, second integrand minus a to a, और थर्ड इंटीग्रैंड a to infinite, ठीक है। तो थर्ड इंटीग्रैंड a to infinite मतलब
देखो इसमें फंक्शन एक्स जीरो दिया हुआ है, लोअर लिमिट ए अप टू इनफाइनाइट, ये जीरो दिया हुआ है, तो थर्ड इंटीग्रैंड ऑलरेडी वैनिश। फर्स्ट इंटीग्रैंड को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अगर माइनस एक्स इक्वल टू वाई पुट कर दिया जाए तो ये इंटीग्रैंड तुम्हारा जीरो हो जाएगा। ओनली फॉर थर्ड सेकंड इंटीग्रैंड विल हैव, देखो ये बचेगा, इसको बाय पार्ट्स में सॉल्व कर दो तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। नहीं समझ आया। कहाँ पर ना समझे, बोलो। सर लिमिट कैसे पुट करते वो नहीं समझ आ रहा। लिमिट कैसे पुट, ये लाइन ना, यस सर। देखो जनरल है, देखो इंटीग्रेशन जो डेफिनेट इंटीग्रल क्या शो करता है, डेफिनेट इंटीग्रल शो करता है समेशंस ऑफ द सीरीज, सीरीज को शो करता है। ठीक है, तो सीरीज मेरा क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंतर में क्या है उसको मत पढ़ो, देखो इसको रहने दो एट इट इज। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक करने का तरीका क्या है, क्योंकि ब्रेक करने का तरीका माइनस इनफाइनाइट टू ए, पॉइंट हमारा दिया हुआ है, देखो ए पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए जाएंगे हम लोग। ठीक है, इस फंक्शंस में एक्स का एक्स जो है इसका लिमिट ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्स जो लाइज बिटवीन कर रहा है माइनस ए टू ए, इसीलिए हम माइनस ए टू ए फंक्शन ऑफ एक्स में एक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसके तहत हम लोग इसको इसको ब्रेक करते हैं। तो ब्रेक करने का तरीका क्या, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए टू प्लस ए और प्लस ए टू इनफाइनाइट, ये तीनों इंटीग्रेंड को हम लोग जोड़ देंगे तो तुमको ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, देखो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। हाँ सर मिल गया। अब तुम देखो थर्ड इंटीग्रेंड, थर्ड इंटीग्रेंड का मतलब कि एक्स का लिमिट क्या, लोअर लिमिट क्या है ए, अपर लिमिट क्या है इनफाइनाइट, तो एक्स का लोअर लिमिट यहाँ क्या है ए, अपर लिमिट तो इनफाइनाइट ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स का लोअर लिमिट ए जब दिया हुआ है, इसे फंक्शन ऑफ एक्स का दिया हुआ है वैल्यू जीरो, तो इसमें अगर जीरो पुट कर दिया जाए तो थर्ड इंटीग्रेंड तो वैनिश हो जाएगा, ये इंटीग्रेंड वैनिश हो जाएगा। क्लियर है? तो मोड एक्स को इनफिनाइट कैसे हम लोग मान लेते? देखो मॉड एक्स को इनफाइनाइट मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स जो है ए से ग्रेटर है, समझो बात को समझो, एक्स का कुछ वैल्यू हो सकता है। ठीक है, एक्स का कुछ वैल्यू हो सकता है, कितना वैल्यू हो सकता है, उसका लोअर ऑलरेडी ए दिया हुआ है, तो अपर लिमिट को डिफाइन नहीं किया हुआ है, फिक्स्ड किया हुआ है, इसीलिए हम लोग इनफाइनाइट, हम लोग उसको इनफाइनाइट दिया हुआ है, समझ रहे हो। और इसमें तुम्हारा ऑलरेडी डिफाइन कर दिया मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, इसीलिए एक्स का यहाँ लोअर, इसको ब्रेक कर दिया तो ये मिलेगा तुमको, डिफाइन कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ए का लेस देन इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए, क्या हम लोग इसीलिए मॉड एक्स को हम लोग इससे ब्रेक करके ये मिलेगा। लेकिन नीचे वाले में तुम्हारा एक्स का लोअर लिमिट ए दिया हुआ है, लेकिन अपर लिमिट इनफाइनाइट है, क्यों, क्योंकि एक्स का वैल्यू जो है कहां तक जाएगा, डिफाइन ऑलरेडी किया हुआ है, ये इसका मीनिंग, इसलिए ये थर्ड इंटीग्रेंड जो है ये तुम्हें वैनिश हो जाएगा जीरो, और ये भी फर्स्ट इंटीग्रेंड में जो वैनिश हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल वे में सॉल्व करो, इसमें इस इंटीग्रेंड को सॉल्व करने का तरीका ये है, माइनस एक्स इक्वल टू वाई पुट कर दोगे तो ऑलरेडी तुम्हारा इंटीग्रेंड वैनिश हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ओनली फॉर सेकंड इंटीग्रल विल हैव, ये मिलेगा, समझ रहे हो। क्लियर है, बोलो।
सॉल्व कर दोगे तो ये तुम्हारा रिजल्ट, सॉल्व तो यही तुम्हारा रिजल्ट है, ठीक है। और इसको इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आई एस ए को 1 सेट कर दो, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल ऑफ आई एस ए को 1 सेट कर दो, और छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो। सिमिलर वे में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको तुम लोग अपने हाथ से सॉल्व कर लोगे, हम भाई क्वेश्चन इसको दिखा दोगे, है ना, इसको भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखो कि तो तुम लोग 1 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। सेकंड प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को डिफाइन किया हुआ, इसको हमने सॉल्व किया हुआ पूरा, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए कर दिए हैं क्योंकि तुम लोग समझने के लिए, काफी लेंथी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो फर्स्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका ये है, सिमिलर वे फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स। देखो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस आई एस एक्स एफ एक्स दिया हुआ है, इसको हम लोग उसी प्रकार ब्रेक कर दिए। ये क्लियर है, बोलो तुम लोग बताओ। हम्म, इसको हम लोग बोलो, तुम लोग को व्हाट्सएप में इसको ऑलरेडी हम लोग भेज दिए हैं, ठीक है। ये सारा प्रॉब्लम जो है तुम लोग सॉल्व करोगे इसको, फर्स्ट 2 प्रॉब्लम, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया हुआ, देखो इसको हम ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने के बाद ओनली फॉर सेकंड इंटीग्रेंट विल हैव माइनस ए टू ए माइनस आई एस एक्स डी एक्स, क्लियर है, बोलो। हम्म, बोलो। यस सर। अब देखो इसको इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, यस सर। अब इंटीग्रेंट को सॉल्व करने से ये मिलेगा, यस सर। ये मिलेगा। चेक करो, मिलेगा। सर 2 के बाद क्या क्या लिखा, आई लिखा हुआ है। हाँ सर ठीक है, समझ गए। ओके, अब ये मिलेगा, यस सर। that will have f bar s will be considered,
ठीक है। तो एफ बार एस इक्वल टू क्या है, माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स एक्सपोनेंशियल पाई एक्स एक्स। ठीक है, ये तुम्हारे एफ बार एस दिया हुआ है। ठीक है, एफ बार एस का वैल्यू क्या है दिया हुआ है। ठीक है, इसका मीनिंग ये है, एफ बार एस का मीनिंग ये है ना, वो क्या है, एफ एक्स क्या होगा, इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है। अगर इसको हम लोग इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन में लिखेंगे तो इस एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये होगा, बोलो, बस फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन में मिलेगा। इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारा ये टर्म, इसको हम लोग इनवर्स फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन में एफ एक्स क्या मिलेगा, ये मिलेगा, वही चीज लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग ब्रेक कर दिए, तो ये पार्ट को, इस पार्ट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिए। ठीक है, और 2 पाई के साथ क्या है एफ एक्स, तो 2 पाई तो लिख ही दिए, 2 पाई एफ एक्स। ठीक है, 2 पाई एफ एक्स, और एफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी तुम्हारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसमें 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो दिखे मल्टीप्लाई करके चीज वही लिखे हैं, देखो। ठीक है, इसके बाद एफ बार एस, एफ बार एस का वैल्यू क्या है, एफ बार एस का वैल्यू देखो क्या है, 2 साइन ए एस बाई एस, ये तो ऑलरेडी लिख दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑफ आई एक्स एस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एस एक्स प्लस आई साइन एस एक्स डी एस। ठीक है, ये रख दिए, 2 पाई, 2 पाई, ये लिख दिए। ठीक है, अब ये तो ऑलरेडी तो दिया हुआ है, अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, 2 जो है एलिमेंट हो जाएगा, इसमें 2 है बाहर से और इसमें भी 2 है, एलिमेंट हो जाएगा, तो हटा दो। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखो क्लियर कि नहीं, बोलो। इसको पर समझने की कोशिश करो। क्लियर है, बोलो। हम्म,
अब देखो इसमें इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स को अलग कर दो, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट क्या है, रियल पार्ट्स। ये क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट्स को हम लोग अलग कर दिए, तो फर्स्ट इंटीग्रेंड को हम लोग लिख दिए, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी ये तो डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इफ x इक्वल टू 0 और a इक्वल टू 1 कर दो, देखो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। सर वो x इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 1 क्यों करेंगे? क्यों लिए? हमको सॉल्व करना क्या है, साइन s/s, ठीक है, इसको निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट ये चीज निकालना है। देखो साइन s a और साइन कॉस sx/s ये तुमको निकालना है। तो इसमें देखो रियल पार्ट्स को देखोगे, कंसीडर करोगे तो रियल पार्ट्स में तो वो फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। देखो रियल पार्ट्स में देखो, फर्स्ट पार्ट में देखो ये रियल पार्ट्स को लिए हैं, ये तुमको मिल जाएगा, है कि नहीं बोलो? हाँ सर। ठीक है, रियल पार्ट्स में यही है, ठीक है। अब देखो ऐसे में तो हमको सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, साइन s/s ds, ठीक है। तो ए क्या है, ए तो तुम्हारा पैरामीटर है, ए का वैल्यू क्या है, पैरामीटर है, पैरामीटर का हम फिक्स्ड वैल्यू हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। और एक्स जो है value, हाँ तो समझ। ठीक है। तो एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दो और ए का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। देखो सर फर्स्ट पार्ट का मैं नहीं निकाले अभी। फर्स्ट पार्ट तो वही है ना, तुमको सॉल्व करने बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करने कुछ बोला नहीं, फर्स्ट पार्ट बोला इसका निकालने वैल्यू निकालने बोला है, और सेकंड का भी वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट का तुम्हारा वैल्यू ऑलरेडी है, यही तो फर्स्ट का है, ये तो वैल्यू होगा तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का, ठीक। हाँ सर ठीक है। ठीक है। और सेकंड पार्ट तो तुम्हारा वैल्यू उसको ब्रेक कर दिया तो मिल गया। और तुम लोग इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्व करोगे, ये ऑलरेडी तुम लोग को हम लोग दे दिए हैं, सॉल्व करोगे।
ठीक है ना।